ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀਏ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈ ਖੜਾਕ ਖੜ ਸੁਣ ਮਿੱਠੀਏ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਏ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀਏ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈ ਖੜਾਕ ਖੜ ਸੁਣ ਮਿੱਠੀਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰਕਾਨੇ ਗੱਭਰੂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਬਣ ਗਈ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਮੁਖੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੁਖੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਹਨੇਰੇ ਛਾ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚੰਨਾ ਤੇਰਾ ਚੰਦ ਬਣ ਗਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਫਾਸਲੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਫਾਸਲੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਨਾਲ ਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਅੱਜ ਫਿਰਦੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਕਾਰ ਜੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਅੱਖ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਘੁੱਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲ ਜੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੋਗਲੇ ਰੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਛੜ ਗਈ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵੇ ਸੂਟਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਨਿੱਤ ਖੈਣ ਵੇ ਕਾਫੀਆਂ ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਫੈਨ ਵੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਪੱਕੀ ਗੁਲਕੰਦ ਬਣ ਗਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਫਾਸਲੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਫਾਸਲੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਲੋਰ ਨੀ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਏ ਜ਼ੋਰ ਨੀ ਰੋਣੀ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਡਰੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਕਲੈਰੀ ਮੋਰਨੀ ਪੱਕੀ ਵੈਲ ਪੁਣਿਆਂ ਦੀ ਜੱਪੇ ਮਾਣਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਗਿੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਸਕ ਚੱਕਦਾ ਬੜਾ ਅਖਰਾ ਏ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਰਾਏ ਵਾਲਾ ਵੇ ਅੱਜ ਨਾਲੀ ਪਿੰਡ ਗੋਰੀਏ ਕੱਬਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਏ ਤੂੰ ਮੰਗ ਬਣ ਗਈ ਥਾਵੇਂ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਫਾਸਲੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਕਦੇ ਤੈਥੋਂ ਸੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਕਦੇ ਤੈਥੋਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤੈਥੋਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤੈਥੋਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕਦੇ ਤੈਥੋਂ ਝੁਮਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜੀਨ ਕਦੇ ਗੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕਦੇ ਗੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਘੂਰ ਕੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਆ ਸਾੜਦੀ ਰਕਾਨ ਤੈਥੋਂ ਜਿੰਦਵਾਰ ਦੀ ਲੱਭਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਏ ਫੇਕ ਦੁਨੀਆ ਚ ਜੱਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਆ ਸਾੜਦੀ ਰਕਾਨ ਤੈਥੋਂ ਜਿੰਦਵਾਰ ਦੀ ਲੱਭਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਏ ਫੇਕ ਦੁਨੀਆ ਚ ਜੱਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ Shernexus
प्यार वाला जो बूटा वड दूं, सच कहनियां दिल चों कढ दूं। हैप्पी आकड़ करनी छड्ड दे, नहीं तां जट्टी तैनू छड्ड दूं। प्यार वाला जो बूटा वड दूं, सच कहनियां दिल चों कढ दूं। हैप्पी आकड़ करनी छड्ड दे, नहीं तां जट्टी तैनू छड्ड दूं। आकड़ां नूं फेर की करेगा, किसे होर ने रकान मंग लई। झांजरां ही मंगियां सी मैं सोहणिया वे केड़ा जान मंग ली। झांजरां ही मंगियां सी मैं सोहणिया वे केड़ा जान मंग ली। झांजरां ही मंगियां सी मैं सोहणिया वे केड़ा जान मंग ली। झांजरां ही मंगियां सी मैं सोहणिया वे केड़ा जान मंग ली। झांजरां ही मंगियां सी मैं सोहणिया वे केड़ा जान मंग ली। गल सुनी अल्लड़े शरारे वालिए, अड्डियां तो उच्चे नी गरारे वालिए। अड्डियां तो उच्चे नी गरारे वालिए। गल सुनी अल्लड़े शरारे वालिए, अड्डियां तो उच्चे नी गरारे वालिए। केड़ा होम टाउन केड़े आई पिंड तो, चन्न तेरे जे हया तू चन्न वर्गी। कुच्ची नाल चांदी दियां खेड़ झांजरा, घोड़िया पैरां नूं बोच बोच रखदी। कुच्ची नाल चांदी दियां खेड़ झांजरा, घोड़िया पैरां नूं बोच बोच रखदी। रंग ते जांदा नहीं सच्ची नखरा जा चलिया। पैंदे ने भलेखे दूरों वेख वेख के, कोही नूर जिवें गोल्ड च चढ़िया। खेड़दे ने सूट सूहे सूहे रंग ते, जांदा नहीं सच्ची नखरा जा चलिया। पैंदे ने भलेखे दूरों वेख वेख के, कोही नूर जिवें गोल्ड च चढ़िया। अत्तरे हुस्नदार बाबे अत्तरा, अत्तरे हुस्नदार बाबे अत्तरा। जिवें पौधे महीने च सनोवर दी। कुच्ची नाल चांदी दियां खेड़ झांजरा, घोड़िया पैरां नूं बोच बोच रखदी। कुच्ची नाल चांदी दियां खेड़ झांजरा, घोड़िया पैरां नूं बोच बोच रखदी। महकदा हुस्न सूहे फुल्लां वर्गा, वेख वेख रजदा ना जी गोरीए। वड्डियां घरां दी होनी सरदारनी, शौकण जी मां दी लगे धी गोरीए। महकदा हुस्न सूहे फुल्लां वर्गा, वेख वेख रजदा ना जी गोरीए। वड्डियां घरां दी होनी सरदारनी, शौकण जी मां दी लगे धी गोरीए। गब्बरू दे पैंदे आनी हौल कालजे, गब्बरू दे पैंदे आनी हौल कालजे। दौड़ ची गवाना जदों लाके तकदी। कुच्ची नाल चांदी दियां खेड़ झांजरा, घोड़िया पैरां नूं बोच बोच रखदी। कुच्ची नाल चांदी दियां खेड़ झांजरा, घोड़िया पैरां नूं बोच बोच रखदी। बेबे साडी नूं दियां करे सरचां, मन दा जित कर ले ख्याल नी। गोरीए लवा के तैनू फुल जट ते, ले जुगा रसौली विकी धाली वाली। बेबे साडी नूं दियां करे सरचां, मन दा जित कर ले ख्याल नी। गोरीए लवा के तैनू फुल जट ते, ले जुगा रसौली विकी धाली वाली। गुरनाम भुल्लर अखाड़ा लाऊगा, गुरनाम भुल्लर अखाड़ा लाऊगा। देती साई जस वालियां नूं 5 ਲੱਖ दी। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ। ਕੁੱਚੀ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਖੇੜ ਝਾਂਜਰਾ, ਘੋੜਿਆ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਚ ਬੋਚ ਰੱਖਦੀ। ਕੁੱਚੀ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਖੇੜ ਝਾਂਜਰਾ, ਘੋੜਿਆ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਚ ਬੋਚ ਰੱਖਦੀ। सारी दुनिया ने दिलों कड्डिया सी मैं, नी तेरे जोगा रब ने तां छड्डिया सी मैं। सारी
दुनिया ने दिलों कड्डिया सी मैं नी तेरे जोगा रब ने तां छड्डिया सी मैं सिंगल सी मैं तू भी कल्ली मिल गई सिंगल सी मैं तू भी कल्ली मिल गई चला जिया 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 मैं तू भी कल्ली मिल गई ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੜਕੂ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਲਾ ਪਿਆਰ ਨੀ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਲਾ ਪਿਆਰ ਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਦੂੰ ਜੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੀ ਜੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਚੱਲਾ ਜਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਚੱਲਾ ਜਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਚੱਲਾ ਜਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਚੱਲਾ ਜਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਥਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਥਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਵੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਵੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਚੱਲਾ ਜਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲੀ 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 ਮਿਲ ਗਈ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਕੋਕਾ ਨੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰੋਕਾ ਨੀ तेरी तारीफ च गाने लिखने मैं सिख लेने कुछ कु गुरनाम भुलर दे कापी ते लिख लेने करूं हर प्रॉमिस पूरा करूं हर प्रॉमिस पूरा दिंदा ना धोखा नी कन्ना नू वालियां ते नक नू कोका नी जिस दिन तू हाँ कर देनी कर लांगे रोका नी कर लांगे रोका नी एले विच मैरिज पैरिस हनीमून लई डन करता मेरी जान तो घट सोना तू कल एंक्शियस मैं चन करता एले विच मैरिज पैरिस हनीमून लई डन करता मेरी जान तो घट सोना तू कल एंक्शियस मैं चन करता अनलिमिटेड प्यार मेरा है लवी संभाल बिल्लो मुंडा डायमंड वर्गा देवी ना टाल बिल्लो तेरे पे मरता जाऊं तेरे पे मरता जाऊं खुद को मैंने टोका नी कन्ना नू वालियां ते नक नू कोका नी जिस दिन तू हाँ कर देनी कर लांगे रोका नी हत्थां विच हत्थ होणगे बीणी विच कंगना नी दिल दी गल दिल नू कह दे छड्ड दे हुण संगना नी हत्थां विच हत्थ होणगे बीणी विच कंगना नी दिल दी गल दिल नू कह दे छड्ड दे हुण संगना नी बड़ी अमेजिंग होनी साडी लव स्टोरी आ डेट ते ले जाना मैं दुनिया तो चोरी आ मेरे तो दूर होण दा मेरे तो दूर जाण दा देना ना मौका नी कन्ना नू वालियां ते नक नू कोका नी जिस दिन तू हाँ कर देनी कर लांगे रोका नी कन्ना नू वालियां ते नक नू कोका नी जिस दिन तू हाँ कर देनी कर लांगे रोका नी Sharing access. ਅੱਖ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਵੇਂਦੇ ਮੋਰ ਤੇਰੀ ਚੜੀ ਦੀ ਆ ਲੋਰ ਤੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਰੂੜੀ ਮਾਰਕਾ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਫੀਮ
ਨਾਲ ਵੈਲੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਝਾਕੇ ਨਮਕੀਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਦਾ ਹੋ ਬਾਹਲਾ ਵੈਲੀਆ ਤੂੰ ਫੱਬੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਤੇ ਆਵੇ ਚੱਲ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆਵੇ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਤੇ ਆਵੇ ਚੱਲ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆਵੇ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਰੇ ਜੀਵੀ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਤੇਰੇ 35 40 ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਲ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਜਮਾ ਸ਼ੇਰ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਐਂਟੀ ਬੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੰਟੀ ਜੱਟਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟੀ ਜਮਾ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਵੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਾਉਂਦੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਨੀ ਜੱਟੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਨੀ ਜੱਟੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੱਟ ਨੂੰ 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 11 ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਤੇ ਨੀ 12 ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨੀ 13 ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਤੇ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੇਸ ਨੀ ਅਰੇ ਜੱਟ ਸਾਣ ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ ਨੀ 11 ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਤੇ ਨੀ 12 ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨੀ 13 ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਤੇ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੇਸ ਨੀ ਅਰੇ ਜੱਟ ਸਾਣ ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ ਨੀ ਵੇ ਤੂੰ ਦਿਸੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਵੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੱਟੇ ਹਾਏ ਵੇ ਜੀਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਲਿਆ ਆਕੜਾਂ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਵੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਵੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੱਟੇ ਹਾਏ ਵੇ ਜੀਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਖਰੇ ਨਾ ਤਾਉਂਦੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੀਜੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤਾੜੀ ਨੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਤਾ ਚਿਰ ਬੜੇ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਬੜੇ ਲੱਗਾ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਗੀ ਤਾਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਪਿਆਰੀ ਦੂਜੀ ਯਾਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੀਜੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤਾੜੀ ਨੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸੜਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਣ ਜੋ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜੋ ਹੱਦ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਚਦੀ ਢੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਟਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਟੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਟਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਵੇ ਮੜਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ
नजरां वे मेरियां गल पक्की कर पा के विचोले वे तेरे नाल मैं जचदी जिवें गुड्डियां नाल पटोले वे तेरे नाल मैं जचदी जिवें गुड्डियां नाल पटोले वे तेरे नाल मैं जचदी ओ जिवें गुड्डियां नाल पटोले वे तेरे नाल मैं जचदी गुरनाम पुल्ला उमरां ने छोटियां ते कारनामे वड्डे आ कहंदे ते कहाउंदे कंडे पहिलियां च कड्डिया उमरां ने छोटियां ते कारनामे वड्डे आ कहंदे ते कहाउंदे कंडे पहिलियां च कड्डिया बंदे पूरे किलनी गाडर जे दिल नी चढ़दी जवानी हिक्का फिरे ठारदी चढ़दी जवानी हिक्का फिरे ठारदी घुमदी आ गेम बेबी इक बोल ते जे अड़दी दिसी तां गल फोन मारदी घुमदी आ गेम बेबी इक बोल ते जे अड़दी दिसी तां गल फोन मारदी फोन मारदी फोन मारदी ओडियां ना पैंदे नी टोचन जाने फोड़ दे चकदे नी रेड बुल गिज्जे पहले तोड़ दे ओडियां ना पैंदे नी टोचन जाने फोड़ दे चकदे नी रेड बुल गिज्जे पहले ना चेले चुले छेड़िए खुंडा नू ही देड़िए झटका दा निराए करंसी बाहर दी घुमदी आ गेम बेबी इक बोल ते जे अड़दी दिसी तां गल फोन मारदी घुमदी आ गेम बेबी इक बोल ते जे अड़दी दिसी तां गल फोन मारदी फोन मारदी फोन मारदी नंबर सेव कर ली मेरा ओ बंदे धरना हट बिलो जिन्ना नाल यारियां वैलियां ने फड़ा कदे फोकियां नहीं मारियां बंदे धरना हट बंदे धरना हट बिलो जिन्ना नाल यारियां वैलियां ने फड़ा कदे फोकियां नहीं मारियां करी केरा चेक नी भरदे ने जैक नी लैनी सरपंच पक्की आउंदे वार दी लैनी सरपंच पक्की आउंदे वार दी घुमदी आ गेम बेबी इक बोल ते जे अड़दी दिसी तां गल फोन मारदी घुमदी आ गेम बेबी इक बोल ते जे अड़दी दिसी तां गल फोन मारदी फोन मारदी फोन मारदी If you're ever in trouble, phone this guy. He's the only one I can trust. ओ जट गरनेड जिहा खड़ा तेरे नाल नी सुरख बुल्ला चो कह दे विक्की तालीवाल नी जट गरनेड जिहा खड़ा तेरे नाल नी सुरख बुल्ला चो कह दे विक्की ताली ना गल भुल्लर दी गौल दी एवें फिरे डोल दी बन जा रकाने साडी सरदार नी घुमदी आ गेम बेबी इक बोल ते जे अड़दी दिसी तां गल फोन मारदी घुमदी आ गेम बेबी इक बोल ते जे अड़दी दिसी तां गल फोन मारदी फोन मारदी फोन मारदी Yeah, mixing in the house. घुमदी आ गेम जे अड़दी दिसी तां गल फोन मारदी सुख संगेड़ा फोन मारदी Just Records फोन मारदी सौरा मेरा डैडी तेरा फिक्र करे तेरे ही विआह दा नी जिक्र करे सौरा मेरा डैडी तेरा फिक्र करे तेरे ही विआह दा नी जिक्र करे हैगी आ चॉइस तां कोई दस दे नहीं तां गल असीं किते नहीं चला लईए ओ मुंडा करदा कनेडा च ड्राइवरी रिश्ता करावां तैनूं सालिए मुंडा करदा अमरीका च ड्राइवरी रिश्ता करावां तैनूं सालिए मैं कमाए वाला बदनाम जीजा जी एवें ना कुलाउंदी इल्जाम जीजा जी मैं कमाए वाला बदनाम जीजा जी एवें ना कुलाउंदी इल्जाम जीजा जी फिकरां च रुल जू जवानी चढ़दी कट्टणे दिन हस हस जीजे
जाके जॉब करदा पैणा नी ड्राइवर ते बस जीजिया लब दे शौकीन जाके जॉब करदा पैणा नी ड्राइवर ते बस जीजिया ਲੌਂਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਏ ਐਲੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦਾ ਲੌਂਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਏ ਐਲੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦਾ ਫਨੀ ਤੇ ਕਰੇਜ਼ੀ ਜਾਏ ਗੱਭਰੂ ਸਾਕ ਕਿਤੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਲੰਘਾ ਲਈਏ ਐਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲੀਏ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪੂਰਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਰਹਿਣ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਰਹਿਣ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪੂਰਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਰਹਿਣ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਇਹੋ ਜੇ ਕਰੇ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਦੱਸ ਜੀਜਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪੜਾਕੂ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ ਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬਸ ਜੀਜਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪੜਾਕੂ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ ਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬਸ ਜੀਜਿਆ Music Empire ਬਲਾਸਪੁਰੀ ਅਮਨੇ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਪੁੱਲਰੋਂ ਦਾ ਗੋਤ ਇਹ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਜੱਟ ਖੇਡਦਾ ਬਲਾਸਪੁਰੀ ਅਮਨੇ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਪੱਪੀਓ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਜੱਟ ਖੇਡਦਾ ਜੋਗੇ ਕੰਗ ਹੁਣੀ ਐਂਦੀ ਤੁਗੇ ਹੁਣੀ ਰੱਖਦੇ ਖਿਆਲ ਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਕਾਰੀਏ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਕਰਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲੀਏ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲੀਏ ਦਿਲ ਦੀ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਤੇ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਜੀਜਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਤੇ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਜੀਜਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਪੁੱਛ ਲਈ ਦੇਣਗੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਜੀਜਿਆ ਲੱਭ ਦੇ ਪੜਾਕੂ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ ਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬਸ ਜੀਜਿਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਕਰਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪੜਾਕੂ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ ਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬਸ ਜੀਜਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲੀਏ ਜੀਜਾ Trust me ਕੁੜੀਏ I swear ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੀਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਉਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਏ ਤੇਰੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਲ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੋ ਗਿਆ ਤੈਥੋਂ ਕੀ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਰਸਟ ਮੀ ਕੁੜੀਏ I swear ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੀਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟ ਜਿਆਏ ਤੇਰਾ ਫੇਸ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਬੜਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਿਆਏ ਤੇਰਾ ਫੇਸ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ دیਵਾਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਰਸਟ ਮੀ ਕੁੜੀਏ I swear ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੀਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ ਟਰਸਟ ਮੀ ਕੁੜੀਏ
से क्या ड्रेसिंग सेंस तेरी, नखरे दे क्या कहने, ब्यूटी 100% तेरी, बड़ी ब्रांड कॉन्शियस क्या ड्रेसिंग सेंस तेरी, नखरे दे क्या कहने, ब्यूटी 100% तेरी, शौक पूरे सारे करूं नारे, खर्चे तू डरदा नहीं, ट्रस्ट मी कुड़िए आई स्वेयर मैं होरा वर्गा नहीं, लाके यारी तेरे ना तैनू चीट मैं करदा नहीं, ट्रस्ट मी कुड़िए। तैनू सब कुछ सूट करे, हर कलर च फबदी तू, प्रीत जज नू नी किन्नी सोहनी लगदी तू, तैनू सब कुछ सूट करे, हर कलर च फबदी तू, प्रीत जज नू नी किन्नी सोहनी लगदी तू, अपना ले अजमा ले ना दूरी जरदानी, ट्रस्ट मी कुड़िए आई स्वेयर मैं होरा मरगा नहीं, लाके यारी तेरे ना तैनू चीट मैं करदा नहीं। Hundle on the beach, yeah. ले नस के किसे बतिया बतारू हंस हंस के, मन कर तारे कट ले नस के। हम तोहरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो, तू हमारा के चाहे लू, इस सोच के बड़ी खुश रहनी हो, हमारा के चाहे लू, इस सोच के बड़ी खुश रहनी हो। रब की कसम हम तोहरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो, तू हमारा चाहे लू, इस सोच के बड़ी खुश रहनी हो। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था। दोस्तों ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा हो। दोस्तों ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगे, क्योंकि तुम भी मेरी तरह। उन्हें हमला कर दिया होता है और देखते ही देखते वो सभी उसे अपना भोजन बना लेते हैं और मेलिनी और साथी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है। वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं। इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक फाइट होती है, जिसके बाद वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अब ये सभी लैब पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद कैलरिन अब लैब में एक गैस फैला देती है, जिसकी वजह से कैलरिन को छोड़ सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीटकर ऑपरेशन के लिए ले जाती है। अब ये सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरिन को एक ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है, जिसे वो वोल्टर को दे देता है।
गाड़ी को खोलने पर इनको उसमें ढेर सारा पैसा मिलता है। सिवाज सबको 2-2 भाग लेकर आगे चलने को कहता है, लेकिन वोल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग ढोने से इनकार कर देता है। सिवाज के फोर्स करने पर वोल्टर उस पर नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। सिवाज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुंचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है, जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजदर्द होता है। वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़ की तरह हो गया है। अब उन्हें कई भेड़ अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो भागने लगते हैं। भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं जहाँ भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहाँ उन्हें बिना खाल की एक भेड़ नजर आती है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइंटिस्ट वहाँ आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और काफी गुस्सा करने लगती है और एंगर भी वहीं होता है। हेनरी उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है, और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पति कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब डिलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है, क्योंकि सारे हॉर्समैन्स ने मिलकर उसको अरेस्ट कराया था, और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे हॉर्समैन्स कहाँ पर है, और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँ। उधर हम चारों हॉर्समैन्स को एक मैजिक शॉप में देखते हैं और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि वोल्टर की बात मानने का भी उनका एक रीजन था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे, और इसलिए डैनियल अब आई को कॉन्टेक्ट करता है और अब वो बहुत ज्यादा अलर्ट सिक्योरिटी से लड़ूंगा। एजेंट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन फाइनली एनेबिस उसको पकड़ लेती है, तो एनेबिस सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को मार देती है। उसके बाद रेड टेल्विन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो वो उसके पास उसके अड्डे पर जाता है और वहां जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेड टेल्विन भी मारा जाता है। जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रेड टेल्विन कैसे मर सकता है। राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स। वो भी मार्वलस मैन जैसा होता है और उसे बेचता है एनेबिस के अड्डे पर। वहां जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। नाइट हुक कोर्टेक्स से कहता नजर आता है जिसके पास कई भेड़ें होती हैं। उसे अचानक भेड़ों की आवाज आने लगती है जो बेहद डरी हुई मालूम होती हैं। इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेड को नीचे की ओर खींचने लगती है। इसके बाद सभी भेड़ भी मारी जाती हैं। अब वहां मैकी और अर्ल आते हैं। वो इस भयानक नज़ारे को देखकर बेहद घबरा जाते हैं। वो लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, फिर उन्हें जमीन पर उसकी कैप दिखाई देने लगती है। वो उसको उठाते ही वहां से 4 कदम की दूरी पर हट जाते हैं। दरअसल हैट के नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग खड़े ऑफ करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लाइट्स को बुझा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। अब उसे वापस विजिबल होने के लिए एंटीडोस को इंजेक्ट किया जाना होता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है। इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। इसे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगा था। इसे लेकर काफ़ी परेशान भी था। जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली। उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यानी कि इस बारे में उसने कभी भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयावह कांड था।
दोस्तों उस बयान में उसने एक खूनी का जिक्र किया था। खूनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी।